Hello friends, welcome back to my channel Fast Physics. In today's session, we will learn about conservative and non-conservative forces. So first see conservative forces. So what is conservative forces? Let us see. The force by which the work done in moving a particle from one point to another point does not depend on the path between the 2 points but depends only on the initial and final position of the particle is called conservative forces. That means यदि किसी फोर्स के द्वारा किसी आप पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क उन दोनों पॉइंट्स के बीच की पाथ पर डिपेंड नहीं करता बल्कि उस पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, तब उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. Gravitational force and electrostatic forces are the conservative forces. The force on a moving charge due to magnetic field is also conservative. That means कोई यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर लगने वाला फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है. एंड अनदर एग्जांपल इज स्प्रिंग फोर्स. एक्चुअली ऑल द सेंट्रल फोर्सेस आर द forces which are the functions of distance and their line of action passes through a point are the conservative forces. That means we can say that all central forces are the type of forces which is the function of distance or their line of action passes through the point. Then this type of forces is called conservative forces. Let us see next. Let an object is taken from point A to B by a force following by three paths APB, ARB and AQB. If force F is conservative, then work done through APB path and is equal to work done through AQB path is equal to work done through ARB path. That means यदि हमारा फोर्स कंजर्वेटिव हो तो तीनों पाथ में किया गया कार्य इक्वल होगा, क्योंकि तीनों पाथ का फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है, इसलिए तीनों पाथ में किया गया वर्क जो है सेम होगी जब फोर्स कंजर्वेटिव हो. तो सिंस वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर वी कैन फाइंड the total work in taking the object from point A to point B by integrating f dot dr from point A to B like this. Integration of A to B integration of f dot dr from A to B is equal to integration of f dot dr from A to B in path AQB and is equal to integration of f dot dr from A to B in path ARB. That means तीनों पाथ में किया गया कार्य इक्वल होगा. एंड in this condition, in complete cycle APBQA is equal to W, because when we rotate या किसी ऑब्जेक्ट को हम एक सर्कुलर पाथ में या एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करते हैं तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होता है, इसलिए W इज इक्वल टू WAPB प्लस WBQ विल बी इक्वल टू 0. और इसको हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स एक सर्कुलर पाथ में यदि हम वर्क निकालें तो 0 हो जाता है. दस अ फोर्स बाय विच द वर्क डन इन टेकिंग द पार्टिकल अलॉन्ग अ क्लोज्ड पाथ इज 0 इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव फोर्स. मतलब हम कंजर्वेटिव फोर्स को इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि यदि किसी फोर्स के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को एक क्लोज्ड पाथ में ले जाया जाए तो टोटल वर्क डन यदि 0 है तो उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं. लेट अस सी नेक्स्ट. बट अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, हम वर्क एनर्जी थ्योरम अपने प्रीवियस क्लास में देखे हैं. द वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि किसी फोर्स के द्वारा किया गया कार्य उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज के इक्वल होता है. Therefore, in a complete cycle, there is no increase in kinetic energy of the particle moving under a conservative force, since no work is done by the conservative force. क्योंकि यदि किसी ऑब्जेक्ट को एक क्लोज्ड पाथ में ले जाया जाए तो उसके द्वारा टोटल किया गया कार्य 0 होता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं होगी. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट.
the conservative force is equal to the negative gradient of potential energy. That means conservative force जो है वह potential energy की negative gradient के equal होती है. तो hence we can write vector F is equal to minus grade U, since vector since UR is equal to minus integration of F dot dr from infinity to R, and this vector F is equal to minus grade U, we can write it as vector F is equal to minus delta U, and when we take the curl of this equation, then it will be equal to 0 like this. Since cross product of two same vector is equal to 0, therefore curl of conservative force will be equal to 0. The work done by the force is independent of path if the infinitesimal work F dot dr is an exact differential. That means यदि किसी इंडिपेंडेंट पाथ में किसी फोर्स के द्वारा किया गया कार्य का इन्फाइनिटेसिमल वर्क एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो, तो उस कंडीशन में भी फोर्स जो है कंजर्वेटिव होती है. तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने के लिए कंडीशन है द कंडीशन फॉर एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई टू बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इफ डी एफ एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी एफ वाई डी एक्स. ये फंक्शन एफ डॉट डी आर विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इफ दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. आगे हम चेक करेंगे कि ये दिए गए फोर्स कंजर्वेटिव होगी या नहीं. तो इससे पहले, इसको चेक करने से पहले आइए हम देख लें कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है. Let us see non-conservative force. The force by which the work done in moving the particle from one point to the other point depends on the path is called the non-conservative force. That means यदि किसी फोर्स के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाए, तो किया गया कार्य या किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, तो उस फोर्स को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं. Thus, a particle moving under a non-conservative force when returns back to its initial position after a closed cycle, its kinetic energy decreases. That means चूंकि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य पाथ पे डिपेंड करता है, इस प्रकार नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा यदि किसी ऑब्जेक्ट को उसके इनिशियल पॉइंट पे वापस लाया जाए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उस पर कार्य किया जाता है, उसके द्वारा कार्य किया जाता है. The central forces are non-central forces which are proportional to the velocity are the non-conservative forces. ऐसा central forces और the non-central forces जो velocity की proportional होती है, वो non-conservative force होती है. Another example is frictional forces and viscous force. अब हम देखते हैं कि दिया गया फोर्स जो है कंजर्वेटिव है या कंजर्वेटिव नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे. So let us see by taking examples. Let us see first examples. If vector F, that means force, is equal to ax y cube I cap plus ay x cube j cap. अब हमें चेक करना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या कंजर्वेटिव नहीं है. तो इसके लिए हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं. पहले इसकी या तो कर्ल निकाल लें. यदि कर्ल की वैल्यू 0 है तो फोर्स क्या होगी, कंजर्वेटिव होगी. दूसरा तरीका ये है कि जो एफ डॉट डी आर है वो यदि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो भी ये फोर्स कंजर्वेटिव होगी. तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे चेक करें. तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने के लिए क्या है, एफ डॉट डी आर को हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल दिखाना है. तो एफ डॉट डी आर की वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एफ एक्स किसके इक्वल है. यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स वाई कैप एंड एफ वाई किसके इक्वल है, एफ वाई है ए वाई एक्स कैप. अब ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन है कि एफ डॉट डी आर will be exact differential, then force F will be conservative. अब ये F डॉट डी आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, हमको दिखाना पड़ेगा डी एफ एक्स इज इक्वल टू डी एफ एक्स
डी वाई इज इक्वल टू डी एफ वाई डी एक्स। यदि हम इसको इक्वल दिखा दें तो दिया गया फोर्स क्या होगी, वो कंजर्वेटिव होगी। तो आइए हम पहले निकालते हैं डी एफ एक्स डी वाई। तो डी एफ एक्स डी वाई, और यहाँ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये है ए एक्स वाई क्यूब। तो इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमारा आएगा 3ax वाई स्क्वायर। सिमिलरली यदि हम डी एफ वाई डी एक्स निकालें तो एफ वाई की वैल्यू क्या है, ये है ए वाई एक्स क्यूब। फिर से इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो देखते हैं कि इसका भी वैल्यू आता है 3ax स्क्वायर वाई। अब हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। यदि ये दोनों इक्वल नहीं है दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि डी एफ एक्स डी वाई डज नॉट इक्वल टू डी एफ वाई डी एक्स। तो ये फोर्स क्या होगी, कंजर्वेटिव नहीं होगी। दैट मीन्स ये क्या होगी, नॉन कंजर्वेटिव होगी। आइए हम दूसरा एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं, चेक करते हैं बी। तो इफ f इज इक्वल टू वेक्टर f इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर एक्स बाई एक्स आई कैप प्लस 2y log ऑफ एक्स जे कैप। अब यहाँ हम ये देख लेते हैं पहले कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है। यहाँ एफ एक्स की वैल्यू है ए वाई स्क्वायर बाई एक्स एंड एफ वाई की वैल्यू क्या है, एफ वाई है 2y log ऑफ एक्स। अब इस फोर्स F को कंजर्वेटिव दिखाने के लिए फिर से वही एफ डॉट डी आर को एग्जैक्ट डिफरेंशियल दिखाना है। अब एफ डॉट डी आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल कब होगी, जब डी एफ एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी एफ वाई डी एक्स। तो आइए हम पहले डी एफ एक्स डी वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो डी एफ एक्स डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी वाई वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले, ए वाई स्क्वायर बाई एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आएगा क्या, 2ay बाई एक्स। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं कि इसका वैल्यू निकालते हैं, डी एफ वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो डी डी एक्स और एफ वाई की वैल्यू क्या है, एफ वाई की वैल्यू ये है 2y log ऑफ एक्स। अब इसको हम यदि डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलेगा क्या, 2y तो कांस्टेंट हो जाएगा और log ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 बाई एक्स हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर एफ वाई की वैल्यू हो जाएगा 2ay log ऑफ एक्स। तो यहाँ पे 2ay हो जाएगा और ये हो जाता है 2ay। इस प्रकार हम देखते हैं कि डी एफ वाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गया, 2ay बाई एक्स। अब एक वैल्यू ये आया और एक वैल्यू ये आया है। ये चूंकि ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, एफ डॉट डी आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है और फोर्स, ये वाला फोर्स ये कंजर्वेटिव होगी। ये क्या होगी, कंजर्वेटिव होगी। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। ओके, आइए हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि गिवन जो फोर्स है वह कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो क्वेश्चन है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फोर्स की वैल्यू है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये फोर्स की वैल्यू है वेक्टर एफ की वैल्यू। एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की इक्वल है। एंड एफ वाई किसके इक्वल है, एफ वाई इक्वल है ए वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो अब इसको चेक करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल दिखाना है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल दिखाने के लिए फिर से हम क्या निकालेंगे, डी एफ एक्स डी वाई और डी एफ वाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, पहले हम क्या निकाल लें, डी एफ एक्स डी वाई की वैल्यू निकाल लें। तो डी डी वाई एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें हम। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो एक फार्मूला है डिफ्रेंशिएशन का उसका यूज़ कर लें। तो उस फार्मूले के अनुसार
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर है वो पहले आ जाएगा, फिर डी डी वाई और ये न्यूमरेटर वाले टर्म, फिर माइनस, फिर ये न्यूमरेटर होता है, फिर उसके बाद डी डी वाई और फिर हो जाएगा आपका क्या, डिनोमिनेटर वाला टर्म्स। डिनोमिनेटर टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका डिनोमिनेटर में टोटल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर से, तो हम देखते हैं कि डिफ्रेंशिएट करने पर सॉल्व क्या आएगा आंसर। ये देखो इस टर्म को देखते हैं, तो इस टर्म को देखने पर क्या मिल रहा है, ये इसको हम y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारा पहला वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेकेंड टर्म में हम देखते हैं कि क्या आएगा, ए एक्स, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये, तो ये पहला वाला टर्म्स यहाँ पर, ये वाला टर्म्स एक्स के वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये जीरो हो जाएगा, और ये सेकेंड वाला टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करें तो सेकेंड वाला टर्म्स क्या आ जाएगा, 2y हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। इस प्रकार इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा -2aXy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं, निकालते हैं dFy अपान dx। तो dx, fy की वैल्यू क्या है, fy की वैल्यू है ay अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो अब इसको हम सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे फिर से उसी फार्मूला का यूज़ करते हुए हम सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर डी एक्स इंटू ए वाई माइनस ए वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपान हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आइए हम देखते हैं, अब यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसके लिए ए वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट है तो पहला टर्म्स क्या हो गया, सीधे सीधे जीरो हो गया, माइनस ए वाई। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यदि हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो पहला टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करें 2x आएगा, सेकेंड टर्म्स कांस्टेंट होगा, सेकेंड टर्म्स जीरो हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म ये इसको डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आएगा, ये हो जाता है 2x, और अपान हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस प्रकार इसको हम देखते हैं, इसको टोटल सॉल्व करने पर आएगा -2ay एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि dFy dx की ये वैल्यू dFx dy इसके इक्वल है यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हेंस dFx dy इज इक्वल टू dFy dx, therefore force F will be कंजर्वेटिव। आइए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डी इफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 2xy प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 2xz के कैप। अब इस गिवन जो फोर्स है इसको हमें चेक करके देखना है कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला जो टर्म फार्मूला है वो वाला हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला ये फार्मूला जो ऊपर में जो सेटिस्फाई किए हैं ये केवल 2 डायमेंशनल के लिए है, और चूंकि ये फोर्स जो है यहाँ पर 3 डायमेंशनल है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका कर्ल निकाल लेंगे। तो आइए हम इसका कर्ल निकालते हैं, तो कर्ल एफ इज इक्वल टू डेल क्रॉस वेक्टर एफ। अब किसी भी वेक्टर का कर्ल कैसे निकालते हैं वो हमें मालूम है, डिटरमिनेंट मेथड से निकाल लेंगे, तो आई कैप जे कैप के कैप, और ये हो जाएगा डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड, और अपान ये हो जाएगा
एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे निकलेगा? ये सॉल्व करेंगे तो आई कैप इज इक्वल टू डेल एफ जेड डेल वाई माइनस डेल एफ वाई डेल जेड। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? माइनस यदि ले लें तो जे कैप की वैल्यू हो जाएगा क्या? डेल एफ जेड डेल एक्स माइनस डेल एफ एक्स डेल जेड। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो होगा प्लस के कैप इंटू ये हो जाएगा क्या? डेल एफ वाई डेल एक्स माइनस डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई। तो हियर एफ एक्स इज इक्वल टू वाट? एफ एक्स इज इक्वल टू है 2x 2xy प्लस जेड स्क्वायर एंड एफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एफ जेड इज इक्वल टू 2xz। अब एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट करने पर क्या आएगा? कर्ल एफ की वैल्यू ये हम देख लेते हैं। तो कर्ल एफ की वैल्यू क्या आती है ये हम देखते हैं। आई कैप इंटू डेल डेल वाई और एफ जेड की वैल्यू हम पुट कर दें तो एफ जेड की वैल्यू क्या है? 2xz फिर माइनस डेल डेल जेड और उसके बाद एफ वाई की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। ये हो गया आई का कोफिशिएंट, फिर जे के कोफिशिएंट चेक पुट करते हैं तो डेल डेल एक्स, फिर यहाँ पर हम एफ जेड की वैल्यू फिर से पुट करेंगे तो एफ जेड 2xz माइनस फिर डेल डेल जेड और यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 2xy प्लस जेड स्क्वायर। ये हुआ आपका जे का कोफिशिएंट। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लस के यूनिट वेक्टर की कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा क्या? डेल डेल एक्स। फिर आपका वैल्यू क्या हो गया? एफ वाई, तो एफ वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस डेल डेल वाई और इनटू एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 2xy प्लस जेड स्क्वायर। आइए अब इसको हम सॉल्व करें। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? फर्स्ट टर्म को हम सॉल्व करते हैं, फिर सेकेंड टर्म को, फिर थर्ड टर्म को। तो इस प्रकार हमें क्या मिलेगा? आई के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? यदि इसको हम y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसको z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें ये भी 0, तो ये हो जाएगा क्या? 0 माइनस 0। फिर माइनस जे, इसको देखें ये आपका क्या हो गया है? 2xz है, ये 2xz। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा? 2z हो जाएगा। फिर माइनस सेकेंड टर्म में आए हम यहाँ पर, तो सेकेंड टर्म में क्या है आपका? z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा और इसका टोटल इस ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2z हो जाएगा। तो हम देखते हैं ये हो जाएगा आपका क्या? 2z। ये 2z हो गया। फिर k का जो ब्रैकेट है कोफिशिएंट है उसको देखें तो ये आपका फर्स्ट टर्म ये वाला देखें तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस इसको ब्रैकेट को डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2x। तो इस प्रकार आपका ये फर्स्ट टर्म जो है 0 हो जाएगा, सेकेंड टर्म भी 0, थर्ड टर्म भी आपका 0 हो जाएगा। इस प्रकार टोटल वैल्यू क्या आया? 0। तो इस प्रकार हमने देखा कि कर्ल एफ की वैल्यू 0 आ गया, इसलिए फोर्स एफ विल बी कंजर्वेटिव। तो इस प्रकार दोस्तों दिए गए कोई भी क्वेश्चन को हम कंजर्वेटिव है या नहीं प्रूफ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट हम